طوفانی بارش کے بعد سیلاب، بلوچستان میں تباہی، ندی نالوں میں شدید طغیانی، جعفر آباد، ڈیرہ بگٹی اور خزدار میں 2 بچوں سمیت 7 افراد جاں بحق، پسنی کے قریب کوسٹل ہائی وے کا پل بہہ گیا، قلات، لسبیلا، آواران اور پنجگور میں بھی پانی ہی پانی، سبی میں ریلا ایک ہی خاندان کے 5 افراد لاپتہ، لوگ چھتوں پر پناہ لینے پر مجبور۔ مانسون کا چوتھا سپیل، کراچی میں ہر طرف جل تھل، پانی گھروں میں داخل، ملی ندی بکھر گئی، کورنگی کاس وے اور کراسنگ روڈ زیر آب، سڑک ٹریفک کے لیے بند، گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں پھنس گئیں، پولیس تعینات، شارع فیصل پر بھی پانی، شہریوں کو مشکلات۔ کراچی میں بارش کے دوران کرنٹ لگنے کے واقعات، 3 روز میں 11 افراد جاں بحق، کہ الیکٹرک کا ترسیلی نظام بھی متاثر، شہر کے مختلف علاقوں میں ٹرپنگ، بجلی کی سپلائی میں خلل۔ تین روز کے دوران کراچی میں فیصل بیس پر 142 ملی میٹر بارش ریکارڈ، صدر میں 120، گلشن حدید میں 112 اور ایئرپورٹ کے اطراف پیمانہ 108 ملی میٹر رہا۔ اندرون سندھ بھی شدید بارشیں، دادو کے 12 دیہات بری طرح متاثر، نائی گچ ڈیم کے فلڈ پروٹیکشن بند میں شگاف، پاک فوج کی امدادی ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئیں۔ لاہور، فیصل آباد اور قصور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی موسلادھار بارش، سلسلہ اگلے 3 روز تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ We can list out the atrocities and violations of human rights that have been committed on the Kashmiris. It will serve to remind Delhi that we know what you are up to and we will continue to speak out against you. مہتیر محمد کشمیریوں کی آواز بن گئے، وادی پر قبضہ، غاصبانہ اقدام، بھارت علاقائی بدماش کا کردار چھوڑ دے، اقوام متحدہ میں جو کہا اس پر قائم ہوں، موقف پر معافی نہیں مانگوں گا، پام آئل کی برآمد پر پابندی کی صورت میں معاشی قیمت چکائی، سابق ملائیشین وزیر اعظم کا کوالالمپور میں سیمینار سے خطاب، وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اظہار تشکر۔ مجوز آل پارٹیز کانفرنس کی تیاریاں، نون لیگ کا راہبر کمیٹی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ، احسن اقبال کا جے یو آئی کے اکرم درانی سے رابطہ، تبدیلی کے دعوے دار جان لے، عوام اب واقعی تبدیلی چاہتے ہیں، سردار ایاز ساتھی کی دنیا نیوز سے گفتگو۔ فیٹف کے قانون کا اور نیب کے قانون کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم قومی مفاد کے اوپر قانون سازی پہ کسی قسم کی کوئی شرط نہیں رکھیں گے، اور آپ کو یہ کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ اپوزیشن نے فیٹف کے اوپر این آر او مانگا تھا، آپ فیٹف کا نام لے کر اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ قائم کرنا چاہ رہے تھے، ہم نے اس قانون پر آپ کی چوری پکڑی اور آپ کو واپس لینے پہ مجبور کیا، اس لیے آپ کو بخار چڑھا ہوا۔ قومی مفاد کی قانون سازی پر کوئی شرط نہیں رکھی، این آر او مانگنے کی باتیں جھوٹ، قوم کو بے وقوف نہ بنائیں، یہ بتائیں کہ راوی کنارے شہر بسانے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ احسن اقبال کا سوال، کلبھوشن کے لیے آرڈیننس، اپوزیشن کے لیے کشتیاں جلانے کی باتیں، حکومت کا بوریا بستر جلد گول ہونے والا ہے، رانا ثناء اللہ کی گفتگو۔ آپ زرداری صاحب سے انتقام لے رہے ہیں، آپ بلاول صاحب سے انتقام لے رہے ہیں، آپ نے زرداری صاحب کی ہمشیرہ سے انتقام کی کارروائی کی ہے، آپ نے نواز شریف کی فیملی سے کیا ہے، شہباز شریف سے کیا ہے، نواز شریف کی بیٹی کے ساتھ جو کیس بنائے، یہ سب آپ کا انتقام ہے۔ نیب سیاسی رہنماؤں کو غیر مؤثر کرنے کا ادارہ بن گیا ہے۔ احتساب کے نام پر انتقام جاری، آصف زرداری، فریال تالپور اور نواز شریف کو نشانہ بنانے والے اس تکبر کو خود بھی بھگتیں گے۔ مولا بخش چانڈیوں کی وارننگ، قانون سازی میں تعاون پر این آر او مانگنے کی باتیں کی جاتی ہیں، پی پی رہنما کی گفتگو، مراد سعید پر تنقید۔
अपोजिशन एनआरओ मांग रही है, ना ही इमरान खान के पास ऐसा कोई इख्तियार है। हुकूमत सिर्फ सियासी मुखालिफिन को दबाने में मसरूफ, आवाम की कोई फिक्र नहीं। आफ्ताब शेरपाव की तनकीद। नैब सबको इसलिए बुलाती है कि उसको हटाया जाए, कई लोगों को बुला के वो फिर छोड़ भी देती है। नवाज शरीफ आसिफ जरदारी खानदान की कोई सियासत नहीं है। मैंने आपको ये कहा था कि ईद के बाद इन दोनों तरफ के लोगों को बुलाया जाएगा। एपीसी कहां गई? आसिफ अली जरदारी और शरीफ खानदान की सियासत खत्म हो चुकी। नैब सबको इसलिए नहीं बुलाता कि उसे हटा दिया जाए। तहरीक इंसाफ का कोई वजीर करप्शन नहीं कर रहा, शेख रशीद का दावा। एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट सिटी करप्शन केस, रेफरेंस मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को इरसाल। लीगी रहनुमा मरकजी मुलजिम नामजद, करप्शन में मुलव्विस होने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं, एहतसाब ब्यूरो। मरियम नवाज की अराजी केस में नैब तलबी, लीगी रहनुमा की वकला से बातचीत, नवाज शरीफ और भाइयों से भी मुशावरत। पार्क लेन रेफरेंस, आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म के लिए एहतसाब अदालत का रजिस्ट्रार नैब कोर्ट कराची को खत। बिलावल हाउस कराची में स्काइप का इंतजाम किया जाए। अनवर मजीद के लिए हस्पताल में वीडियो लिंक के एहतमाम की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को फ़ाल करने के लिए फौरी इक़दामात का फैसला। मुल्तान में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के क़याम की उसूली मंजूरी। हिफाजती तदाबीर के समरात, कोरोना का जोर टूट गया। 24 घंटे में 14 अमवात। मुल्क भर में 2,83,487 मरीज। सिंध में 1,23,246, पंजाब में 94,223 अफराद मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में 34,539 और बलोचिस्तान में 11,835 केस। FATF के अहदाफ पर अमल दरामद में पेशरफ्त। पाकिस्तान ने अहम रिपोर्ट भिजवा दी। हालिया कानून साजी इंतहाई अहम, मुताल्लिका इदारे मुश्तरका कोशिशें कर रहे हैं। डायरेक्टर जनरल फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट। मटियारी से लाहौर 660 kV ट्रांसमिशन लाइन पर काम आखिरी मराहिल में दाखिल। 85% हिस्सा मुकम्मल। 1.66 अरब रुपए लागत आएगी। 2,212 अफराद को रोजगार मिला। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने यूरो 5 पेट्रोल की दरामद शुरू कर दी। जनवरी 2021 तक इसी मयार का डीजल मंगवाने की भी तैयारियां। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। कराची में आटे के बाद चीनी भी मजीद महंगी। एक्स मिल कीमत में 3 रुपए फी किलो इजाफा। रिटेल मार्केट में फी किलो नर्ख 100 रुपए तक पहुंच गए। फल फरोशों, फार्मेसीज में भी प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी। लाहौर हाई कोर्ट की महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल को अमल दरामद की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने अबूजर सलमान खान न्याजी एडवोकेट की दरखास्त पर हुक्म जारी किया। मेजर तुफैल शहीद निशानी हैदर का 62वां यौम शहादत। बुरेवाला में यादगार पर फातिहा ख्वानी, फूल भी चढ़ाए गए। पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते की सलामी। आजादी के जश्न की बड़ी तैयारियां। सब्ज हिलाली परचमों की बहार, बाजार सजने लगे। मिली नगमों की गूंज, बड़ों के साथ साथ बच्चे भी पुरजोश। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ खाई। एबटाबाद के अजीबो गरीब ग्राउंड में क्रिकेट मैच। मकामी टीम की जीत पर तमाशाइयों का जश्न। वीडियो वायरल।
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं हूं आमना सज्जाद और मैं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में रुख करते हैं बलूचिस्तान का, जहां पर शदीद बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। पसनी की बात करें तो यहां पुल, लोगों का सामान और जानवर सैलाबी रेले में बह गए हैं। मुख्तलिफ हादसात में बच्चों समेत 7 अफराद जान बहक हुए हैं, जबकि गवादर का लसबेला और कराची से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया है। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश और सैलाब से तबाही, नदी नालों में तुग़यानी। पसनी के करीब कोस्टल हाईवे का पुल टूट गया। कल्लात, लसबेला, अवरान और पंचकोर में भी पानी ही पानी। गाड़ियां फंस गईं और जानवर रेले में बह गए। जाफराबाद, खुस्तार और डेरा बुगटी में 2 बच्चों समेत 6 शहरी जान की बाजी हार गए। हब में कई अफराद सैलाबी रेले में फंस गए। रत्तो डेर से 60 मुतासिरीन को रेस्क्यू किया गया। पानी घरों में दाखिल, लोग अपनी मदद आपके तहत निकालते रहे। गवादर का लसबेला और कराची से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। सैलाबी रैली में लोगों का सामान और खाने पीने की अशिया तबाह हो गई। इंतजामिया की जानिब से मुतासिरा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सयाहती मकामात पर शहरियों की आमद-ओ-रफ्त पर पाबंदी लगा दी गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिशों का सिलसिला इतवार तक जारी रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी ये कहते हैं कि बारिशों से सूबे में अक्सर डैम भर गए हैं। वज़ीर आला ने मुतालिका महकमों को इमदादी कामों की हिदायत कर दी है। उन्होंने कहा कि टेंट्स, खाने पीने की अशिया और अद्वियात मुतासरा इलाकों में पहुंचाई जा रही हैं और वज़ीर आला खुद तमाम ऑपरेशंस की निगरानी कर रहे हैं। जो हमारे डैम्स हैं, कुछ डैम्स में जो है 55,000 क्यूसेक, कुछ में 86,000 क्यूसेक पानी जो है इस वक्त वो फ्लो कर रही है। ओवर फ्लोइंग जो है बहुत सारे डैम्स में, रिवर्स पे ये रिपोर्ट किया जा रहा है। कुछ कैजुअल्टीज भी रिपोर्ट हुए हैं। हम आई अलर्ट पे हैं और रेस्क्यू के लिए जो हमारी टीमें हैं वो तमाम इज़ला में अलर्ट हैं। तमाम हमारे जो CMDU है, चीफ मिनिस्टर डिलीवरी यूनिट, इसी तरह PDMA, डिविजनल हेडक्वार्टर्स, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में कंट्रोल रूम भी इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। वज़ीर आला साहब खुद इन तमाम ऑपरेशन और सूरत हाल की वो खुद निगरानी कर रहे हैं। फोरकास्ट है कि मज़ीद बारिशें तेज़ हो सकती हैं। आवाम से भी गुजारिश है कि वो भी एहतियात करें। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.